Hello friends, myself Patel Dixita from Ashwamegh Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 8, Subjects Science, Chapter number 17, Stars and the Solar System. Friends, in this unit we are discuss about our solar system and learn about celestial objects and the moon, the satellite of the earth, moon and the phases of moon. Then we learn about the moon's surface. So, moon surface is dusty and barren. There are many craters of different sizes and we will learn about the stars. In the last lecture, we have learned about constellation. What means constellation? Yes, constellation means the group of star. Okay, the star forming a group that has the recognizable shape is the constellation. Okay, so we learn about Saptarishi constellation. So this is the shape of Saptarishi constellation. How many stars present in Ursa Major means Saptarishi constellation? Yes, 7 stars. First one is Marichi, then Vasishtha, Angiras, Atri, Kratu, Pulaha and Pulastya. Then we discuss about the moves of Ursa Major. This is movable position of Ursa Major. And we also learn about Orion. Orion constellation look like this. Okay, it is Sirius star and this is Orion constellation. So today we are move to the next topic and it is most important topic our solar system, the solar system. Friends, we all know that how many planets are present in our solar system? Yes, 8 planets are present in our solar system. First one is Venus, then Mercury, then Earth, then Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So friends, पहले हमारे सोलर सिस्टम में प्लूटो प्लैनेट भी था, बट जो प्लैनेट के फीचर्स है वो फीचर्स प्लूटो में नहीं थे, जिसकी वजह से प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम से उसमें काउंट नहीं किया गया. सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट द सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम, द सन एंड द celestial bodies which revolve around it form the solar system. So friends, we all know that the sun is also a star and he bright with its own life. Okay, so it consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors. The gravitational attraction between the sun and these objects keep them revolving around it. So friends, look at here, the sun and planet. Okay, and planet के जो सैटेलाइट्स है उन सब के बीच में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स. फ्रेंड्स, वी ऑल नो दैट our earth have also gravitational force. So जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अपर वर्ड में मूव नहीं करता. ओके, हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आ जाती है. ओके, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो आपने
स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा होगा कि न्यूटन ने क्या किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में डिस्कवर किया था। तो हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड में थ्रो करेंगे तो वो वापस कहाँ पे आ जाएगा, डाउनवर्ड में। ओके, किसी भी चीज़ को हमने ऊपर की तरफ फेंका तो वो वापस कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर। ओके, डाउनवर्ड में आ जाएगा। सो इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स सन के अराउंड भी है, जिससे कि पूरा सोलर सिस्टम सन के अराउंड रहता है। ओके, अपनी पोजीशन जो है वो मेंटेन करके रखता है। नाउ the earth, as you know, also revolves around the sun. It is a member of the solar system. Okay, earth भी कहाँ पे है, सोलर सिस्टम में, बिकॉज ये भी एक सोलर सिस्टम की मेंबर है। कौन, अर्थ, जिस पे हम रहते हैं। इट इज अ प्लेनेट। देर आर 7 other planets that revolve around the sun. The 8 planets in their order of distance from the sun are Mercury, please underline this. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So these 8 planets move around sun, okay, and maintain their place. किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। फिगर 17.7 shows us schematic view of the solar system. So look at here, this is our solar system and the Venus. Okay, Venus is second planet of our solar system. First one is Mercury, then Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, यूरेनस एंड नेपच्यून। सो फ्रेंड्स, ये सारे प्लैनेट्स के डिफरेंट कैरेक्टर है। ओके, सो फ्रेंड्स, हैव यू रीड दैट देयर आर 9 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? क्या आपने कहीं पे रीड किया है कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट है? डिड यू नो टिल 2006 देयर वर 9 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. प्लूटो वाज द farthest planet from the sun. So, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लूटो एक और प्लेनेट था हमारे सोलर सिस्टम में। सो उसे क्यों निकाल दिया गया सोलर सिस्टम से? इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, प्लीज अंडरलाइन दिस, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। IAU का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या है IAU का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन adopted a new definition of a planet. Pluto does not fit this definition. It is no longer a planet of the solar system. So, सोलर सिस्टम की जो एक डेफिनेशन रेडी की किसने, IAU ने, उसमें प्लूटो फिट नहीं हो रहा था। ओके, ये प्लूटो उस डेफिनेशन के हिसाब से उस प्लैनेट में फिट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम से रिमूव कर दिया गया। सो फ्रेंड्स, लेट अस नो अबाउट सम मेंबर्स ऑफ द सोलर फैमिली. सो वी ऑल नो दैट द मेन स्टार, द मेन पर्सन ऑफ सोलर सिस्टम कौन है? यस, द सन. द सन इज द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अस. It is continuously emitting huge amount of heat and light. So friends, sun एक क्या है? स्टार है, एंड वो हमारे सबसे नियर, सबसे नजदीक का स्टार है। कौन? सन. Sun is the source of almost all energy on the earth. In fact, the sun is the main source of heat and light for all the planets. सो सोलर सिस्टम में जो 8 प्लैनेट है वो सभी प्लैनेट पे लाइट एंड एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? हीट एंड लाइट सन प्रोवाइड करता है। सारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उस पे हीट एंड लाइट किसकी वजह से है? सन की वजह से। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द प्लैनेट. The planet look like star, but they do not have light
देयर ऑन। ओके, सो स्टार की खुद की लाइट होती है जिसकी वजह से वो ट्विंकल करते हैं या लाइट देते हैं। बट प्लैनेट्स जो है वो भी स्टार की तरह ही दिखते हैं, बट उनकी खुद की लाइट होती नहीं है। दे merely reflect the sunlight that falls on them. Can you distinguish between planets and stars? So friends, what is star? Star have its own light, and planets, what is planet? Planet have no own light. All planets reflect the sunlight. Okay, मीन्स सनलाइट जो प्लैनेट्स पे आती है उसे क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं। कौन? प्लैनेट्स। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ आइडेंटिफाई प्लैनेट्स फ्रॉम स्टार, इट इज द स्टार ट्विंकल। वेरियस प्लैनेट्स डू नॉट। ओके, सो आपने स्काई में देखा होगा एट नाइट स्काई में क्या होता है? बहुत सारे स्टार्स जो कि ट्विंकलिंग करते हैं, एंड कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो कि ट्विंकलिंग नहीं करते। सो फ्रेंड्स, जो भी स्टार ट्विंकलिंग नहीं करते वो क्या है? इट इज प्लैनेट। वेरियस प्लैनेट डू नॉट। ऑल्सो द प्लैनेट्स कीप चेंजिंग देयर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टार। सो स्टार के साथ स्टार को सेंटर में रख के प्लैनेट्स क्या करते हैं? अपनी पोजिशन को चेंज करते रहते हैं। A planet has a definite path in which it revolves around the sun. This path is called an orbit. So friends, look at here. This is the sun. This is Mercury. So this is orbit of Mercury. Clear that? जिस पाथ पे प्लैनेट सन के अराउंड या स्टार के अराउंड मूव करता है, रिवॉल्व करता है, उस लाइन को, उस पाथ को क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। क्लियर दैट? अ प्लैनेट हैज अ डेफिनेट पाथ इन विच इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। ओके, डिफाइन वर्ड में पूछा जा सकता है व्हाट इज ऑर्बिट? जिस पाथ पे प्लैनेट सन के अराउंड मूव करता है। ओके, a planet has a definite path in which it revolves around the sun. This path is called an orbit. Clear? The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. The period of revolution increases as the distance of the planet increases from the sun. So, हमने स्टैंडर्ड 6 में देखा था पीरियडिक मोशन के बारे में। ओके, सो व्हाट इज पीरियडिक मोशन? जितने टाइम में एक रिवॉल्यूशन खत्म हो, लाइक आपने पेंडुलम देखा होगा। ओके, पेंडुलम क्या करता है? जितना टाइम एक रिवॉल्यूशन में कंप्लीट करता है उतना ही टाइम सेकेंड रिवॉल्यूशन में भी कंप्लीट करता है। सो उस रिवॉल्यूशन को, उस मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियडिक मोशन। ओके, सो जितना टाइम प्लैनेट फर्स्ट टाइम जितना टाइम लेता है, जितना पीरियड सन के अराउंड रिवॉल्यूशन करने में लेता है, उतना ही टाइम सेकेंड टाइम में लेता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? पीरियडिक रिवॉल्यूशन। The time taken by a planet to complete one revolution is called its period of revolution. Okay, the period of revolution increase as the distance of the planet increase from the sun. Now, I wonder, Buzo says, I wonder why the planet do not collide while revolving around the sun. So, what is collide? Collide means यस, स्ट्राइक होना, एक दूसरे से टकराना। सो बुजो wondered why the planets do not collide while revolving around the sun. Means suppose ये सन है and उसके अराउंड ये जो प्लैनेट्स है वो सारे मूव कर रहे हैं वो उसकी खुद की ऑर्बिट पे। तो मर्क्यूरी एंड वेनस, वेनस एंड मार्स, मार्स एंड अर्थ एक दूसरे से
कोलाइड मीन्स टकराते क्यों नहीं है, स्ट्राइक क्यों नहीं होते हैं. सो लेट्स नो about with an activity. Activity 17.9. Go out into the playground with 4 or 5 of your friends. Draw 4 circles of ready 1 meter, 1.8 meter, 2.5 meter and 3.8 meter, all having a common center. Ask of one of your friends to stand in the center and represent the sun. Your other 4 friends may represent Mercury, Venus, Earth and Mars. Ask your friends to move around the sun in anti-clockwise direction. In their own orbit, do they collide with one another? So friends, look at here. It is our solar system. And हमें क्या करना है, सेंटर में एक पर्सन को, एक स्टूडेंट को, एक आपके फ्रेंड को खड़े रहना है एज अ सन. एंड देन उसके अराउंड 4 ऑर्बिट क्रिएट करना है. एक ऑर्बिट 1 मीटर पे, देन सेकेंड 1.8 मीटर, थर्ड वन इज 2.5 मीटर एंड फोर्थ वन इज 3.8 मीटर. एंड ask your friend to stand the center, represent the sun, and then other friends may represent Mercury, Mars, Venus and Earth. Okay, clear? Then when we revolve, उनका जो रिवॉल्यूशन है सन के अराउंड, वो अगर वो अपनी ऑर्बिट में कंप्लीट करेंगे तो क्या वो एक दूसरे से कोलाइड होंगे, टकराएंगे? नो, नहीं टकराएंगे. उनको किस पोजीशन में करना है, मूव एंटी क्लॉकवाइज. ओके, क्लॉक इस तरह से मूवमेंट करता है तो हमें किस तरह से करना है, इस साइड से. क्लियर दैट बिसाइड रिवॉल्विंग अराउंड द सन, अ प्लैनेट आल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस लाइक अ टॉप. सो कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड उसके ऑर्बिट पे तो मूव करता ही है, बट वो खुद अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है लाइक अ टॉप. क्या फ्रेंड्स, आप सबने टॉप देखा है? इट इज अ टॉप. सो कोई भी एक प्लैनेट, ओके,
Earth can be said to be a satellite of the sun. So, generally we call it a planet of the sun. क्या है वो? Planet है किसका? Sun का. So friends, Earth के अराउंड भी मून क्या करता है? रिवॉल्विंग करता है, तो हम उसे बोलते हैं सैटेलाइट. तो सन के अराउंड भी तो अर्थ मूव करती है, तो हम उसे सैटेलाइट क्यों नहीं बोलते? बिकॉज अर्थ इज प्लैनेट एंड वी यूज द टर्म सैटेलाइट फॉर द बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स. प्लैनेट्स के अराउंड जो बॉडी रिवॉल्विंग करती है उसे हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट. आपने आर्टिफिशियल मीन्स ह्यूमन मेड सैटेलाइट के बारे में भी सुना होगा, जो कि ह्यूमंस बनाते हैं एंड अर्थ के अराउंड या सन के अराउंड रिवॉल्विंग करने के लिए छोड़ते हैं. देयर आर मैनी मैन मेड सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट. जैसे मैंने आपको बताया कि मैन मेड, ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि अर्थ के अराउंड रिवॉल्विंग करने के लिए छोड़े गए हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड today's lecture, orbit, planets and the solar system and satellite. In the next lecture, we discuss about astronomy in ancient India. Thank you.